Okay, we were discussing about the reaching the age of adolescence, okay, in which we already discussed about the different the changes that occur at the time of the puberty and the secondary, primary and the secondary sexual characters. है ना? We discussed about the primary and secondary sexual character and who is responsible for the secondary sexual character. That we discussed, that is the hormone. Okay, these are the chemical substances, okay, which control the or the coordinate the activities of the living organism and their growth. Now, how hormones like are producing, from where they come into our body, ठीक है, उसके लिए हमने करा था कि there is a one gland, like मतलब one नहीं, there is gland that helps to secrete the secretions, ठीक है. तो हमने उसमें करे थे कि glands जो होते हैं, these are of two types. Glands जो है हमारे पास, we discussed yesterday a little bit, कि exocrine gland है, one is the exocrine and second is the endocrine. ठीक है, as I told you कि X से you can learn exit होना, और N से we can learn enter. So you can learn in any either way. ठीक है, तो these exit होने के लिए we need some passage. हमें अगर किसी चीज को exit होना है, then we need some passage. So for that passage, that means these glands are duct glands. ठीक है, इनको हम duct बोलते हैं. And without they directly enters into the blood stream. So these are called the ductless gland. ठीक है जी. अब हमने ये कल भी हमने करा था, we already discussed कि ये duct gland और ductless gland directly blood में जाएंगे. They directly enter into the blood. ठीक है, they releases, जो ductless gland है, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, they releases, write down, ductless gland के नीचे लिखो, they releases hormone into the blood stream. They releases hormones into the bloodstream. ये जो हार्मोन्स है ये रिलीज करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब ब्लड के अंदर डायरेक्टली ये रिलीज करेंगे टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, टू रीच अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे जाके, और उसको हम बोलते हैं टारगेट साइट. ब्लड स्ट्रीम टू रीच a particular body part, जिसको हम बोलते हैं टारगेट राइट बेटा, व्हाट वी विल से टारगेट. ठीक है, ये जो है these are called the duct gland. Duct gland means, as we already discussed in the reproduction chapter, we discussed कि जो testes हैं, they are producing the sperms. Sperms कहाँ से जाते हैं? From where the sperms will move? They will move through the sperm duct. ठीक है, vast difference of the sperm duct. उसी तरह से when the ovaries they releases the eggs, so from where the fallopian tube. So that means that passage is required, and that is in the duct. But ductless gland, then they enter directly into the bloodstream और सीधे ब्लड में जाएंगे, पर्टिकुलर टारगेट करेंगे, उस टारगेट पे जाके दे विल अफेक्ट, दे विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है जी, आगे लिखो. इसके बाद लिखो, ये सारे जितने भी हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द अनदर हार्मोन. मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो सारे हार्मोन्स हैं, they are under the control of a one particular, that is called the pituitary gland. ठीक है, so note it down. देखो यहाँ पे, the production of all these hormones production of all these hormones are controlled by, ठीक है, जितने भी हार्मोन्स हैं, all these are controlled of another hormone. मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंट्रोल्ड बाय अ PITUTI
राइट PITUTIARY, ठीक है। अब ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो स्पेशली अगर हम बात बोले कि दीज हार्मोन्स, सो दीज आर द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, दे स्टार्ट वर्किंग। तो वी कैन से, यहाँ अगर आप इसको एक हेडिंग बना लो कि रोल ऑफ, राइट डाउन एक सेकेंड बानी, रोल ऑफ हार्मोन इनिशिएटिंग, write down role of hormone in initiating, write down beta, role of hormone in initiating role of hormone in initiating reproductive function. What is the role? हमारे पास रोल क्या है हार्मोन्स का इन रिप्रोडक्टिव, मतलब इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। व्हाट इज द रोल? ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। ठीक है जी। अब ये जो प्यूबर्टी है, यानी कि जब हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दे प्रोड्यूसेस देयर गैमीट्स, उसको हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है। अब ये करते क्या है, जो इनका मेन जो हमारा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स luteinizing हार्मोन, जिसको LH लिख सकते हो आप, luteinizing हार्मोन, विजिबल है, लिखो luteinizing हार्मोन विच स्टिमुलेट। ये सबसे पहले प्यूबर्टी के टाइम पे जो हमारे हार्मोन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है luteinizing हार्मोन विच स्टिमुलेट्स which stimulates the testes to produce sperms in male and stimulate ovaries to produce eggs। अब ये देखो, जब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हुई तो वहां पे क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन सिक्रीट करा, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म एज वेल एज द फीमेल्स ने ओवरीज को करेगा स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस द एग्स। अब जब ये टेस्टिस और एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, नाउ वेयर दे विल एंटर, वेयर दे विल गो। अब ये जाएंगे कहाँ पे, जब इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया कि वहां पे यू कैन से प्रोड्यूस टेस्ट ओवरीज एग्स मत लिखो, यहाँ पे ये लिखो प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एंड यहाँ लिखो एस्ट्रोजन। हाँ, to produce the testosterone and ovaries to produce the, ये वर्ड लिखो, ovaries to produce estrogen and progesterone। अब जब ये दोनों हार्मोन्स, क्योंकि स्पर्म्स एज वेल एज ओवरीज तो थ्रू डक्ट जाएंगे ना, तो दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू राइट डाउन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोन्स, इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन एंड द ओवरीज टू प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन। अब जब ये दोनों चीजें बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस हो गए, अब वेयर दे हार्मोन विल गो, जो ये दोनों हार्मोन्स हैं ये रिलीज हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, है ना। अब ये दोनों हार्मोन्स जो है दे रिलीज, यहाँ लिखो द हार्मोन्स
releases into bloodstream and reach the टारगेट साइट, मतलब रीच द पार्ट ऑफ द बॉडी, उस पार्ट पे चले जाएंगे जहां इनकी रिक्वायरमेंट है। रीच पर्टिकुलर लिख लो, रीच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी, जिसको हम बोल सकते हैं टारगेट साइट। जैसे अगर इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में इफ आई वांट टू क्लियर इट आउट कि ये क्या मतलब हुआ, एज आई एम सेइंग कि दे सिक्रीट द हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड द प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन? दे रिलीजेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच टू द पर्टिकुलर साइट। as we can say the in male members the different functions are there, beards and the mustaches, ठीक है, ये चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई। यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगी। So these are the reaching to the particular site where they are required, ठीक है जी। जब ये हो गया then release हो गया। Now what is the other thing happen? जब वो release हो गया that means these hormone bring changes in the body part, ठीक है। नेक्स्ट इसके फिर एरो लगा के लिखो, आ रहा नजर? हाँ, these bring changes these brings and wait एक मिनट, these bring changes in the body, changes in the अन्वे करो अन्वे। तो जो ये आपने रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन लिखवाया इसका ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ये कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर है या वैसे ही है? ये endo we were talking about the endo. I told you two types of the glands are there, exocrine and endocrine, but here we will not discuss about the exocrine gland. अभी हम endocrine glands को पढ़ रहे हैं कि endocrine glands क्या क्या functions perform करते हैं। हमारी but we are learning in this chapter in adolescent the number of the changes जो होती हैं body में, how it happen, who is responsible for those changes. So these are the hormones are responsible. अब how the hormones produced, हार्मोन्स जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स टू टाइप्स के हैं। अब ये जो चेंजेस हैं, देखो जो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट है, अब प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, वी आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोजन है इन फीमेल, तो या मेल में अगर हम बात कर रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन है। इफ टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूसिंग, तो टेस्टोस्टेरोन कौन सी डक्ट से जाएगा कि आपके मुस्टैचेस और बियर्ड आए, ठीक है, दैट इज तो इट शुड बी इन द ब्लड स्ट्रीम so that it will automatically reach to the particular site where it is required. जो changes हमारी बॉडी में आ रही है that is due to the hormones, ठीक है अनवे। और मैम हार्मोन्स में ऐसा क्या होता है कि जैसे वो बियर्ड ग्रोथ कर दे शुरू? केमिकल्स है ना, सिक्रीशन है। अब देखो अगर द सेम थिंग व्हाट इज इन द मेडिसिन, मेडिसिन में क्या है, सम काइंड ऑफ द केमिकल जो पर्टिकुलर उसी चीज को टारगेट करता है। इन द सेम वे द हार्मोन्स, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट करेगा, जो हमारी अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है और ग्रोथ को करता है। जैसे सपोज दो हार्मोन्स है, सम पीपल आर वेरी टॉल, सम आर वेरी स्मॉल, ड्वार्फिज्म होता है, जियांटिज्म होता है। दैट इज हाउ इट्स पॉसिबल, दैट इज अगेन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स। समटाइम हार्मोन्स बहुत एक्सेस रिलीज होंगे, देन द जियांटिज्म विल टेक प्लेस। लेस होगा तो ड्वार्फिज्म। ज्यादा रिलीज होएगा वो कहाँ पे जाएंगे, बोन्स में? तो ज्यादा अगर देखो ज्यादा रिलीज हुआ तो जियांटिज्म हो जाता है ना। दैट इज टू ऑल्सो, देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। अगर कोई भी चीज, मतलब कि जैसे सिंपली कोई बंदे ने हाइट इंक्रीज करनी है तो वो हार्मोन्स किस? हाँ, हाइट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स आर देयर ना, ग्रोथ हार्मोन्स आर देयर। अब जैसे हम कहते हैं ग्वाइटर हो गया, अब ग्वाइटर क्या है, अगर एक्सेस कोई चीज रिलीज हो रही है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अगर वो एक्सेस रिलीज हो रहा है तो बंदे को देखो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कईयों को बहुत ज्यादा हो जाता है थायराइड, बहुत हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। कईयों को थायराइड जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, वो एकदम से वीक होना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स एक्सेस और लेस दोनों चीजें ही दैट इज हार्मफुल। हमारी बॉडी में जो हार्मोन की सिक्रीशन अब एक पर्टिकुलर लेवल तक रहनी चाहिए। देखो हम कितनी चीजें, नंबर ऑफ द थिंग्स यू रेड
कि अगर कोई डिजीज होती है या कुछ है तो वो या तो एक्सेस हो गई कोई चीज या आपकी बॉडी में कोई चीज जो है वो लेस हो जाए, तभी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो वो उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो हाइट में अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है कि इतना हार्मोन रिलीज होना है, जो एक पर्टिकुलर नॉर्मल पर्सन है द रिलीज मतलब जो ग्रोथ उन हार्मोन की टारगेट साइट क्या होगी? हार्मोन के टारगेट साइट हाँ हार्मोन का टारगेट ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन हाइट के लिए डेफिनेटली इट विल हेल्प टू इंक्रीज आवर हाइट टू द बोन्स को करेगा वो हमारी। ओके मैम, जैसे बियर्ड के लिए अलग हार्मोन्स होंगे, अलग ग्लैंड्स होंगे। वो टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन इज देयर जो आपके बियर्ड और मुस्टैशेस जो आपके एडोलेसेंट में चेंजेस दैट अकर एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस। अब मैं कि गर्ल्स प्यूबर्टी के साथ डील करते हैं हाँ एट टेस्टोस्टेरोन। द टाइम यस, अगर गर्ल्स में हम कह रहे हैं तो गर्ल्स में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है दैट इज टारगेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, जिसमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड विल टेक प्लेस। ठीक है, हमारी ओके मैम। बॉडी दैट इज फंक्शन अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से कि देखने में हमें लगता है बॉडी है, बट बॉडी इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द पूरा एक सिस्टम है दैट इज डूइंग वर्क इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। ठीक है, हाँ जी। These brings changes in the body, ठीक है, at the onset of the puberty, मतलब onset of puberty पे these changes will occur। अब आप लिखो इसमें like as we are saying कि these changes occur। Now after this if we want to see reproductive phase जो होता है उसमें होता क्या क्या है and when it starts, when it ends। जो reproductive phase है, phase of life in human है, when it starts in boys or the girls, is it the same time it starts or ending at the same time? Now write down the heading reproductive phase of life in human। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज में? क्या रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो सेम चलता है बॉयज और गर्ल्स में? सेम है दोनों का। एडोलेसेंस जो होते हैं दे बिकम कैपेबल ऑफ एडोलेसेंट एज जो होती है they become capable of reproduction। now they are capable हो जाते हैं as we talked about कि जो primary sexual character है that is present since birth। secondary sexual character means at adolescent when our sex organs are working properly, मतलब they start they functionally mature, that means adolescent age को हम क्या कहेंगे? adolescents become capable of reproduction। that means क्या मतलब हुआ इस लाइन का? मतलब क्या है कि adolescent become capable, that means when the testes they start to producing sperm and the ovaries they start to producing the eggs, that means they are able to reproduce। अब जो reproductive phase है, ठीक है, जो कैपेसिटी है ऑफ प्रोड्यूसिंग गेमीट्स, जो कैपेसिटी होती है of producing gametes in males is much more, write down capacity of producing gametes last for much longer time मीन्स क्या है? अब जो रिप्रोडक्टिव यानी कि जो फेज है वो स्टार्ट कब होता है? ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो रिप्रोडक्टिव स्टार्ट्स, जो रिप्रोडक्टिव फेज जो है इन फीमेल स्टार्ट कब होता है? दोनों के केसेस में, इन केस ऑफ द बॉयज एंड इन केस ऑफ द गर्ल इट स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी। ठीक है, एट यहाँ यू कैन से starts around
10 to 12 years. ठीक है, and ends around 45 to 50 years. यानी कि the female reproductive system it starts at the 10 to 12 years, like उसमें जो फेस है रिप्रोडक्टिव वो इतने टाइम से 45 to 50 years तक रहता है. Now but is in case of the male same it starts around, वहां पे स्टार्टिंग एज जो है, लेकिन ये जो है लास्ट लॉन्ग तक रहता है एज ही इज हेल्दी. इन मेल्स starts around 14 to 15 years and lasts, write down, it lasts as long last as long as he is healthy throughout his life. Okay, you can write. It starts around the 14 to 15 and lasts as long as he is healthy throughout his life. जब तक उसकी लाइफ है, if the person is healthy, he is capable of like the reproductive phase जो है that will remain. But in case of the female, it starts around 10 to 12 years and ends 45 to 50 years. Is this clear, bete? Is this clear, बच्चे? Wait. एक सेकेंड. Period of time? ये देखो. Yes, and they think that reproduction is with the concept of reproductive phase. Now, what exactly do we mean by this? Let us understand the two words. Reproductive here means the process of reproduction, and phase means the time period. So, are we saying that individuals are capable of reproduction only for some period of time? Yes, and this is applicable only in the case of females. ठीक है, यही मैंने लिखा. Let me explain. In case of males, development of testes causes production of gametes, this sperms. And this process, once started, does not terminate throughout the male's life. Only the sperms produced can decrease in count with age. However, the ability to reproduce still remains the same. But the case of females is completely different. Females cannot reproduce throughout their lives. ठीक है, This term, I had written. reproductive phase, holds true in their case. And why is it so? Well, the simplest answer to this question is the process of ovulation. That's right. Now, can you guess from the name, what is ovulation? It is the process of release of ova from the ovaries. Now, you may wonder how the process can be an answer to this question. Is this point clear? ठीक है, that is due to the, I told you कि in case of the male it remains throughout, मतलब it will active throughout his life. Only the count of the sperms will decrease or increase. That is according to the age. But in case of the female, that is a particular time for production, and after that it stops around the age of the 45 to 50 years. ठीक है, तो there is like some cases that already we discussed in the reproduction chapter, हम पढ़ भी चुके हैं कि वहां पे एक्चुअली होता क्या है ना. तो दैट इज द ओवुलेशन. ओवुलेशन एज ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना. हमने reproduction chapter में we already discussed about these things कि if the fertilization takes place then the zygote is formed, and if the zygote is formed then the further process will be there. But if the zygote is not formed, so at that time what happens, the eggs or the ovaries they rupture and they comes out या oozes out in the form of the blood. So after this we will discuss about the
menstrual cycle. Just write down the heading. Write down menstrual cycle.